Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो? बढ़िया. आज हम बिजनेस सर्विसेज को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे. फॉर द पास्ट फ्यू लेक्चर्स हम ध्यान दे रहे हैं बैंकिंग के सेक्टर के ऊपर. अगेन रिकैप कर देता हूँ. One of the very important chapters in the subject of OCM, around 20 marks, is something that you have to compulsory be attempting for this particular chapter in your upcoming examination. We have understood a long time back what are services, what are its features, and then one of the services, which is banking, is what we have been concentrating upon for the last few lectures. Types of banks हमने समझ लिया है, banks की functionalities हमने शुरू कर लिए हैं. आज हम सेकेंडरी के सेकेंड पार्ट को, जिसको यूटिलिटी फंक्शंस कहते हैं, अगेन ये एक अलग क्वेश्चन बड़े आसानी से और बड़े आराम से पूछा जा सकता है. तो सारे फंक्शंस को काफ़ी रेयरली पूछा जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी वैरायटी आ जाती है. तो एक पार्ट को या तो एजेंसी या तो यूटिलिटी या तो प्राइमरी अलग से डेफिनेटली पूछा जा सकता है. हमने ये मतलब जो प्राइमरी फंक्शन है वो ऑलरेडी पिछली बार कवर अप कर लिया है. As well as just the last lecture, we concentrated upon the agency functions, in which there was periodic collections and payments, portfolio management, fund transfer, dematerialization, and forex transactions. Today हमारा ध्यान है यूटिलिटी फंक्शंस पे. यूटिलिटी में सबसे पहला क्या आता है? इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक. चेक मैं मेरे घर पे बैठकर प्रिंट नहीं कर सकता हूँ, बट वो सही नहीं होगा. हाँ, क्योंकि चेक्स में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक बैंक यूनिकली अपने उस चेक के लिए बनवाता है. जिससे पता चले कि ये किस बैंक का चेक है, किस ब्रांच का चेक है. चेक्स को मैन्युफैक्चर करना, चेक्स को प्रिंट करना, चेक्स में सेफ्टी फीचर्स डालना, डिमांड ड्राफ्ट को बनवाना. मैनी अ टाइम चेक्स की एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक चेक कभी कभी डिसऑनर हो सकता है. उसको क्या कहते हैं सामान्य भाषा में? बाउंस हो सकता है. मतलब मैंने चेक तो दे दिया बट मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे. 3 दिन बाद पता चला कि वो चेक बाउंस हुआ. तब तक तो मैं भाग चुका था, कोई मेरे को पकड़ ही नहीं पाया. चेक डिसऑनर हो सकता है. बट एग्जाम्पल, आपको किसी को 2 लाख देने हैं और वो जो दूसरा आदमी है ना, वो बोल रहा है देखा चेक मत देना, मेरे को 2 लाख पक्का चाहिए. तो आप बोलोगे नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, चेक नहीं डिमांड ड्राफ्ट भेजता हूँ.
ओके, डिफरेंस क्या है? व्हेन आपको डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक में कोई ना कोई फॉर्म भरते हो, तो आपके अकाउंट में से बैंक 2 लाख चाहिए, इमीडिएटली 2 लाख निकाल देता है। अगर 2 लाख है ही नहीं तो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा ही नहीं, अगर है तो बैंक निकाल लेगा और उस वैल्यू का डीडी प्रिंट करके आपको दे देगा। आप ये डिमांड ड्राफ्ट उस बंदे को भेज सकते हो। जब वो डिमांड ड्राफ्ट अपने सामने देखता है, उसको ये 101% गारंटी है ये कभी बाउंस नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा आपके खाते से पहले ही निकाल कर रखा गया है। जो भी है, चेक्स का यूज़ भी होता है और बड़े आसानी से, और डिमांड ड्राफ्ट का यूज़ भी होता है, बट ये दोनों को इशू करना और इसके कनेक्शन में सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देना, ये बैंक्स का एक सेकेंडरी यूटिलिटी फंक्शन है। नेक्स्ट, लॉकर। बड़े बड़े पिक्चर्स में आपने बड़े बड़े बैंकों में बड़े बड़े लॉकर्स डेफिनेटली देखे हैं। हाँ, तो मल्टीपल बैंक्स अपने कस्टमर्स के वैल्यूएबल्स को, वो गोल्ड हो सकता है, वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो प्रेशियस स्टोन्स हो सकते हैं, बराबर सेफ रखने के लिए ऐसे लॉकर्स की सुविधा सभी को नहीं, अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स के लिए ही देते हैं, सबके लिए देते नहीं, ताकि घर पर अगर ये सामान रखा जाए। मैंने हाल ही में एक छोटा सा रिपोर्ट देखा, छोटी सी वीडियो क्लिप देखी, जहाँ पर किसी ने तो घूसखोरी का पैसा अपने ड्रेनेज के पाइप में, करीबन मुझे लगता है 13 लाख रुपया ड्रेनेज के पाइप में छुपा कर रखा था। ऑब्वियसली वो काला धन था, तो वो ऐसे छुपा के रखने की जरूरत पड़ेगी, बट काफ़ी लोग अपने मेहनत का पैसा बचा कर रखना चाहते हैं। घर में रखेंगे तो टेंशन रहता है, तो ये पैसा आप बड़े आसानी से बैंक में, लॉकर में, अगर आपके पास में ज्वेलरी है, बड़े आसानी से आप इस तरीके के लॉकर की फैसिलिटी की यूजफुलनेस आप निकाल सकते हो। थर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बैंक्स हैव गॉट इंटेलिजेंट पीपल। बैंक ऐसा रिक्रूट करता है, ओके तो बैंक अपने क्लाइंट्स के लिए, बराबर कंपनीज के लिए, ओके प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकता है ना। व्हाट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट? के अगर एक कंपनी एक ब्रांच स्टार्ट करने वाली है, एक प्रोडक्ट स्टार्ट करने वाली है, एक सर्विस स्टार्ट करने वाली है, वेदर वो ब्रांच, प्रोडक्ट, सर्विस, गुड्स सक्सेसफुल होगा, उसमें इतना पैसा डाला जाएगा, इतने एफर्ट्स, इतनी मेहनत की जाएगी, क्या वो सक्सेसफुल होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, कितना मुनाफा उससे कमाया जा सकता है, ये सारा एस्टीमेट, अनुमान, ओके बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करके अपने क्लाइंट को दे सकता है, ओके ताकि क्लाइंट एक पैसा डालने के पहले ही उनको पता चल जाता है, अच्छा मार्केट में इस तरह की परिस्थिति है, मार्केट में जो कस्टमर्स है उन लोगों को ये ज़रूरत है, वो इस तरह से पूरा कर सकते हैं, उस तरह से पूरा कर सकते हैं। इसको कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिकॉज बैंक्स हैज़ दोज ब्रेन पावर, okay they provide such services of preparing a project report and submitting it at a certain charge to their customers. Next gift check. See आप obviously पैसा तो आपने किसी भी जो मन चाहा है, पसंदीदा है, जिनका कोई बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगा, शादी होगा, आप उनको कैश तो दे ही सकते हो, बट थोड़ा अगर सेफ रहना है आप इस तरीके का एक गिफ्ट चेक भी इशू कर सकते हो। बैंक्स इशू गिफ्ट चेक्स एंड गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर्स, सभी को नहीं होता, अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज टू नॉन अकाउंट होल्डर्स, वेल दोनों के लिए किया जाता है। द गिफ्ट चेक्स एंड कॉइन्स कैन बी यूज बाय क्लाइंट्स फॉर द पर्पज ऑफ गिफ्टिंग, ओके क्योंकि स्पेशली अगर वो गोल्ड कॉइन है तो उसे थोड़ा और लकी कंसिडर किया जाता है और वो किसी की शादी में तोहफे के रूप में बड़े आसानी से दिया जा सकता है। वो कोई ऑर्नामेंट में के स्टाइल में नहीं होता, वो कोई रिंग या नेकलेस या बैंगल के फॉर्म में नहीं होता, वो एक नॉर्मल एक स्लैब, एक कॉइन के फॉर्म में होता है, जो आप मेल्ट करके आगे जाकर उसे दूसरे कोई भी फॉर्म में बना सकते, बट बैंक उस फॉर्म में देता है और बेचता है। नेक्स्ट, अंडरराइटिंग सर्विसेज, बराबर जब भी कंपनीज को अपने शेयर्स बेचने हैं, बट कंपनी के रूल्स में एक रूल है कि अगर इतने प्रतिशत शेयर्स ना बिके
तो कंपनी पूरा पैसा वापस लौटाएगी। तो वो एक डर रहता है कंपनी को। अंडरराइटर क्या करता है? अंडरराइटर कंपनी को ये तसल्ली देता है, गारंटी देता है कि कंपनी तू घबरा मत, मैं तेरे शेयर्स बेचूंगा। उसको कहा जाता है अंडरराइटिंग, बराबर। कंपनी को ये बोला जाता है, बैंक्स जो ये काम करते हैं, कि अगर ना बिके बका आपके शेयर्स हम खरीदेंगे, अगेन उसको कहा जाता है अंडरराइटिंग। तो बैंक ऐसा सर्विस अपने कुछ कस्टमर्स के लिए, कुछ क्लाइंट्स के लिए डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज गोल्ड रिलेटेड। आवर कंट्री ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ गोल्ड, बराबर। विदेशों में यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ओके, गोल्ड इतने डिमांड में नहीं है जितना डायमंड होगा। प्रेशियस स्टोन्स रहेगी, रूबी, गार्नेट, सफायर, बट गोल्ड इंडियंस सबसे ज़्यादा कंज्यूम, खाते नहीं है बट इस्तेमाल करते, इसके लिए इंडिया इतना गोल्ड इंपोर्ट करता है। तो गोल्ड इज़ अ वेरी प्रेशियल एंड अ वेरी इमोशनल फैक्टर कनेक्टेड टू इंडियंस। तो बैंक्स उसके कनेक्शन में, खरीदारी बेचने के कनेक्शन में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ओके। एंड गोल्ड से कनेक्टेड जो फंड्स चलते हैं, ओके, वो भी बैंक्स प्रोवाइड करता है। मतलब आप आपका पैसा बैंक में डालते हो और बैंक वो पैसा गोल्ड्स में इन्वेस्ट करता है, और अकॉर्डिंगली गोल्ड की प्राइस जैसे ऊपर नीचे जाती है आपको में भी नफ़ा या नुकसान हो सकता है। तो ये थे 6 यूटिलिटी फंक्शंस जो सेकेंडरी फंक्शंस के कैटेगरी में बैंक्स का आता है। तो हमने आज तक पिछले 2 लेक्चर्स में प्राइमरी फंक्शंस कवर अप कर लिए हैं अलग से, सेकेंडरी फंक्शंस का एक अलग से हमने टॉपिक किया था एजेंसी से कनेक्टेड, और आज हमने सेकेंडरी फंक्शंस में यूटिलिटी फंक्शंस कवर अप किए हैं। आप एक साथ तो आंसर ना एक्सपेक्ट करें, बट अलग अलग डेफिनेटली आंसर आप इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको सिंपल करा दिया है। हम ये चैप्टर को जैसे ही हमारे लेक्चर्स आगे जाते हैं, हम भी आगे ये चैप्टर को लेकर जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब बटन को भी दबाइए, और अगर हमारे पुराने मित्र हो तो कृपया करके लेक्चर्स को शेयर ज़रूर करें। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।